اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر روز یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے آپ پابندی سے مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ الحمدللہ، پورے 10 دن کے 12 دن کے سفر کے بعد جو میرا وادی کشمیر کا سفر تھا، قدرت کے نظارے میں وہاں سے بھی آپ تک پہنچا رہا تھا اور دکھا رہا تھا کہ دنیا کی جنت ایسی ہے تو لوگوں رب کی جنت کیسی ہوگی۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آئندہ یہ جو جمعرات آئے گا، تھرسڈے، تو رات کو میرا بیان ہوگا، اس کا عنوان ہی رہے گا کہ ہاں میں نے کشمیر کا منظر دیکھا ہے، لیکن میں آپ کو دکھا دوں کہ کشمیر بہت اچھا ہے، کشمیری بھی بہت اچھے ہیں۔ میں نے ویشنو دیوی جہاں ہمارے ہندو بھائی جاتے ہیں، وہ راستے بھی، وہ مقام بھی، وہ جگہ بھی دیکھا، اور وہاں شیشناگ جو جاتے ہیں وہاں پر ابھی اگلے مہینے سے جو یاترا کی تیاریاں ہو رہی ہے وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنی محبتوں سے وہاں پر لوگ تیاریاں کر رہے ہیں۔ بڑا پرامن ماحول ہے۔ کشمیریوں سے ملیے، کشمیر جائیے، دنیا کی اس جنت کو ضرور دیکھیے، اور جو غلط انداز میں بدنام کیا جاتا ہے اس کو بھی آپ سمجھیے۔ کشمیر بہت اچھا ہے، کشمیری بھی بہت اچھے ہیں، وہاں ہندو مسلم بڑے پریم کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ مگر کیا کریں، میں بھی میڈیا والا ہوں تو میڈیا کی روزی روٹی بالکل آتنکی ماحول بنانے ہی میں چلتی ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ گراؤنڈ کی رپورٹ ہی لیتے ہیں۔ ہماری ذہن سیٹ ہو چکے ہیں کہ کس کے خلاف ہم کو کیا دکھانا ہے، تو بڑی بدماشیاں ہم میڈیا والے کرتے ہیں۔ لیکن میں میڈیا والوں سے بھی کہوں گا کہ تم کو بھی مرنا ہے، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے، زیادتی مت کرو، زمینی رپورٹ صحیح انداز میں دکھاؤ، بتاؤ، حکومت کو جھجوڑو تاکہ پورے ملک میں امن و امان کا ماحول بنا رہے، اور سطح کی دلالی چھوڑ دو، سطح کی دلالی بند کرو، اس پیارے ملک سے سچی محبت کرو اور اس پیارے ملک کے اصل مدوں پر بحث کرو، اور ہندو مسلم مندر، مسجد، شیولنگ مسجد، پھوارا، گیان واپی، تاج محل، تیجو محل، یہ بدماشیاں میڈیا والوں سے بھی میں کہوں گا کہ پلیز اس پر ڈیبیٹ کرانا بند کرو اور اصل مدوں پہ ڈیبیٹ کرواؤ۔ ملک کے
जनता के फायदे के मुद्दों पर डिबेट करवाओ, ताकि तुम मरो तो तुम्हारी और हमारी आत्मा को शांति मिले। जी हाँ, कश्मीर का सफर मुकम्मल करके मैं सीधा आगरा आया और आगरा में मोहब्बतों की नगरी ताजमहल भी देखा। ये मोहब्बतों की नगरी है, बड़ी मोहब्बत से ऐसा महल बनाया गया जो दुनिया के 7 अजूबों में हमारे मुल्क को जिसने शामिल कर लिया, मगर इस मोहब्बत की नगरी को भी नफरत के पुजारी तेजू महल करके नफरतों का माहौल बनाना चाहते हैं। मैंने वहां पर भी आगरा में यही पैगाम दिया। ताजमहल के हिंदू भाई जो रिक्शा चलाते हैं, टांगे चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें ताज से, ये मुगलों की इमारत से क्या मिल रहा है? तो कहा कि साहब 70% आगरा इसी ताजमहल पर खा रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, कारोबार कर रहा है। तो मैंने वहां हिंदू मुसलमानों से मुलाकात करके भी कहा कि देखो, हम खा रहे हैं इसी इमारत से, मगर फिर भी हमारे दिमागों में जो नफरतें, हमारे नहीं, कुछ चिंटू जो नफरती चिंटू है, उनके दिमागों में जो नफरत भरी हुई है, खा रहे हैं उन्हीं का और फिर नफरतें भी फैला रहे हैं उन्हीं के नाम से। तो जैसे खाना खाते हैं वैसे उनका कुछ और भी खा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत प्यारा देश है, सूफी संतों का देश है, प्लीज इसे बदनाम ना करो। इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज में पहली बड़ी खबर आ रही है हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से मुताल्लिक। जी हाँ, अमेरिकी महकमा खारिजा ने साफ तौर से ये कहा है, पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक अपनी सालाना रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया है। अमेरिका ने साफ तौर से ये कहा है महकमा खारिजा ने कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज पर, अल्पसंख्यक पर, अक़लियतों पर साल भर हमले होते रहे हैं। अब अमेरिकी महकमा खारिजा की रिपोर्ट में ये कहा गया है, मगर हिंदुस्तान ने इसे मुस्तरद कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, हिंदुस्तान से 2 बातें अब लोग कह रहे हैं कि देखें, अगर आपके दलाल और गोदी मीडिया भले ही अक़लियतों पर होने वाले मजालिम को, अक़लियतों की मॉब लिंचिंग, अक़लियतों को दबाया जाना, कुचला जाना, मारा जाना, सताया जाना, भले ही आपकी दलाल मीडिया ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया देख रही है। और दुनिया में ऐसे अंधभक्त नहीं है जैसे हमारे यहाँ अपने हैं। हमारे यहाँ तो मीडिया बाकायदा खरीदी हुई भी है और अंधभक्त भी है, लेकिन दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, और इसका इजहार खुलकर अमेरिकी महकमा खारिजा ने अपनी रिपोर्ट में कर दिया है। अब जाहिर बात है कि हिंदुस्तान कैसे मानेगा, तो हिंदुस्तान ने इस बात को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी बेशर्मी है, इतनी बेगैरती है कि हम ये भी कहते हुए शर्माते नहीं है। भाइयों बहनों, 8 साल में हमारी हुकूमत ने, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमको शर्मिंदगी महसूस हो। ये जुमला भी आपने 3 दिन पहले सुना होगा, भाजपा ने ये जुमला कहा है। यानी 8 साल भाजपा को हो गए हैं, लाखों लोग मर गए हैं, हजारों ने आत्महत्या कर ली, सैकड़ों बेटियों का रेप हो गया, सैकड़ों लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई, दंगे फसाद, माइनॉरिटीज के घरों पर, दुकानों पर, मकानों पर बुलडोजर, उनको फंसाया जाना, सब कुछ पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन बेशर्म जिगर चाहिए, बेशर्म दिल चाहिए, जो इतना होने के बावजूद भी बड़ी बेगैरती और बेशर्मी से कहे कि भाइयों बहनों, 8 साल में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदगी हो। तो लोग ये कह रहे कि शर्म उनको आती है जिनके खमीर में शर्म हो। तो अब अमेरिका ने भी अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि हिंदुस्तान में साल भर माइनॉरिटीज पर हमले होते रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन और रशिया के हालात को लेकर। जी हाँ, रशिया ने कब्जा कर लिया है तकरीबन 20%, यूक्रेन के 20% इलाकों पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि जंग के पूरे 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। रशिया के सदर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने तबाही और बर्बादी की रुदादी पेश की और ये कहा है कि तकरीबन 20% इलाके पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने तबाही और बर्बादी की रुदाद पेश करते हुए कहा है कि हजारों शहरी लोग मारे जा चुके हैं और लाखों अफराद को नकले मकानी पर, गांव छोड़ने पर, घर बार छोड़ने पर मजबूर किया गया। यूक्रेन के मशरिक को अब रशिया के हमले का नुकसान भुगतना पड़ रहा है, जहां रोजाना तकरीबन 100 यूक्रेनी फौजी हलाक हो रहे हैं।
नाज़रीन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिका में एक चर्च के बाहर फायरिंग हुई और उस फायरिंग से 3 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही है। अमेरिकी स्टेट आइवा के एक चर्च के पार्किंग एरिया में फायरिंग से 2 लेडीज हलाक हुई हैं। मुलजिम ने खवातीन को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वक्त चर्च में एक मजहबी प्रोग्राम शुरू था। पुलिस को जाए वक़ूअ से 3 अफराद की लाशें मिली है। फिर वक्त मरने वालों की शनाख्त और उनके आपस में ताल्लुक के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। आइवा में फायरिंग से कुछ देर पहले वहां के प्रेसिडेंट यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने खिताब में न्यूयॉर्क, टेक्सास और ओक्लाहोमा में फायरिंग के वाकयात की मजम्मत की। उन्होंने कांग्रेस पर जोर दिया था कि खुदकार हथियारों पर पाबंदी लगाई जाए, खरीदारों की तस्दीक की जाए और फायरिंग के वाकयात पर काबू पाने के लिए दीगर इक़दामात किए जाए। पिछले 4 हफ्तों के दौरान अमेरिका में फायरिंग के वाकयात से तकरीबन 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। दरअसल सऊदी अरब से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब सऊदी अरब के लिए बगैर एजेंट के 24 घंटे में उम्रे का वीजा हासिल हो सकता है। आप हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विस शुरू कर दी है। सऊदी अरब के वजीर हज व उमरा डॉक्टर तौफीक अर-रबिया ने बैरून सऊदी अरब से अब किसी एजेंट की मदद के बगैर उम्रे की इलेक्ट्रॉनिक दरखास्त देने की सहूलत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर तौफीक अर-रबिया ने कहा कि इस उम्रे का वीजा सिर्फ 24 घंटे में जारी हुआ करेगा। उन्होंने बताया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की 2030 विजन का एक अहम हदफ ज्यादा से ज्यादा मोतमरीन के खैर मकदम के लिए सहूलियात पैदा करना भी है और वो हम कर चुके हैं। अब 24 घंटे के अंदर आप बगैर एजेंट के उम्रे का वीजा हासिल कर सकते हैं। वहीं पर सऊदी अरब की ये भी खबर आ रही कि सऊदी अरब में फिर कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और 775 नए केसेस सामने आए। 2 लोगों की मौत भी हुई है। और न्यूजीलैंड की खबर कोरोना को लेकर ये भी आ रही कि एक हफ्ते में यानी पिछले हफ्ते में पास्ट वीक में 48,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। यानी कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज में मेरी निगाहों के सामने है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन कैंसर समेत कई खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की वार्निंग सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि इक़्तिदार का नशा, सत्ता का नशा दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, सत्ता का नशा बड़ा खतरनाक होता है। हम भी देख रहे हैं कि कुछ मुल्कों में कुर्सी और सत्ता और इक़्तिदार और पावर हासिल करने के लिए लोग अपने शहरियों की जानों से खेल भी रहे हैं, बल्कि लोग मरवाते भी है अपने ही लोगों को सत्ता के लिए। तो अमेरिकी इंटेलिजेंस की जो वार्निंग और ये अल्फाज जो सामने आए हैं कि इक़्तिदार का नशा दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है, सचमुच इक़्तिदार का नशा बड़ा खतरनाक होता है। इक़्तिदार का नशा अपनों को भी मरवा देता है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।